بیٹا ٹھہرنا، اور اس کے بعد اپنے ہاتھ سے امام علی مقام علی اکبر کے سر پہ امامہ باندھتے ہیں اور گھوڑے پہ بٹھاتے ہیں۔ لیکن جیسے علی اکبر 2 قدم جاتے ہیں، مولا حسین کہتے ہیں علی اکبر ایک بات سن لے میرے بیٹے۔ علی اکبر پھر آتے ہیں، سینے لگتے ہیں، بابا کیا؟ ارشاد فرماتے ہیں صبر کرنا۔ پھر اس کے بعد اور آگے بڑھے، 2 قدم بڑھے، پھر کہا بیٹے ذرا ادھر آنا، ایک بات اور سننا۔ اس کے بعد پھر کچھ کہا، اس کے بعد پھر آگے بڑھے تو کہا بیٹے ایک مرتبہ ذرا پلٹ کر مجھے دیکھ لینا۔ ہائے 56 سال کا وہ باپ اپنے جوان بیٹے کو، جوان بیٹا بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے، آج وہ لاٹھی ٹوٹنے جا رہی ہے، تصویر مصطفیٰ خاک میں ملنے جا رہی ہے، لیکن حسین تیرے صبر کو کیا نام دوں؟ بلکہ یہاں ایک جملہ اہل ذوق کے لیے کہتا ہوں، حسین کے صبر پر صبر کو بھی حیرت ہوگی کہ صبر کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ آج صبر ایوب بھی حیرت سے حسین کا چہرہ تکتا ہوگا، آج صبر اسماعیل بھی حیرت سے حسین کو دیکھتا ہوگا، آج صبر ابراہیم بھی حسین کو حیرت سے تکتا ہوگا۔ بیٹا جوان جا رہا ہے، حسین 2 قدم پہ بلاتے ہیں تو بیٹا جوان کہتا ہے بابا میں اپنے بیٹے کا امتحان نہ لے، آپ بار بار مجھے واپس بلا لیتے ہیں، مجھے جلدی سے جام شہادت نوش کرنا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا میرے نوجوان سوچے، آج انہوں نے اپنی جوانی کو لڑکیوں کی محبت میں، ناجائز کاموں میں، موبائل گیموں میں اور خدا جانے کیسی گندگیوں کے لیے وقف کیا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، یہاں جو تم آنسوؤں کی سوگات مولا علی اکبر کی جوانی کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہو، ذرا سوچو تو صحیح، ان کی جوانی کا تقدس اپنی جوانی میں پیدا کرنے کی کوشش تو کریں، ذرا سوچے تو صحیح۔ اللہ اکبر، وہ بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے بابا بار بار آپ مجھے روک کیوں لیتے ہیں؟ تو حسین رو کر کے کہتے ہیں علی اکبر آج تجھے میری محبت کا احساس شاید اس لیے نہیں ہوگا کہ تو ابھی جوان ہے اور تو ابھی کنوارا ہے، تیری شادی نہیں، تیرے بچے نہیں، تجھے میری محبت کا احساس اس دن ہوتا میرے بیٹے جب تیرے جیسا خوبصورت کوئی تیرا بیٹا ہوتا، تیرے جیسا خوبصورت کوئی تیرا بیٹا ہوتا، تیرے جیسا خوبصورت بیٹا 18 سال کا اتنی آسانی سے نہیں ہوتا، بیٹا جوان اتنی آسانی سے نہیں ہوتا۔ مولا حسین نے کہا اکبر تیرے جیسا خوبصورت کوئی تیرا بیٹا ہوتا اور وہ تیری آنکھوں کے سامنے کٹنے کے لیے جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے لیے جاتا، تو جو تیرے دل پہ گزرتی آج وہ میرے دل پہ گزرتی ہے، لیکن دل پہ گزرتی کس سے بیان کروں؟ جا میرے بیٹے جلدی جا اور حوض کوثر پر جا کر اپنے نانا کے ہاتھوں سے اپنی پیاس بجھا۔ مولا علی اکبر نے مڑ کر اپنے بابا کو سلام کیا، ماں نے خیمے سے چہرہ نکالا اور کہا اکبر ایک بار اپنی امی کو اور اپنی پھوپھی کو اپنا چہرہ دکھا دے۔ اکبر نے پھر مڑ کر دیکھا اور اس کے بعد میرا مولا شہزادہ علی اکبر میدان کارزار میں جیسے علی اکبر پہنچے اتنے خوبصورت تھے، تصویر مصطفیٰ تھے، حضور کی تصویر تھے۔ عمر بن سعد اور ان جیسے دشمنوں کو بھی علی اکبر پہ پیار آ گیا۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اکبر کو کٹنے سے جتنا حسین کو تکلیف نہیں ہوگی اس سے زیادہ اکبر کے باغی ہونے سے تکلیف ہوگی۔ ایک کام کرتے ہیں، چلو اکبر کو حکومت کا لالچ دیتے ہیں، پیسوں کا لالچ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے باپ کو چھوڑ کر ہماری طرف آ جا۔ سوچو کربلا میں کیسی کیسی سیاست چلی گئی، کیسے کیسے ہٹ کنڈے مولا حسین
हुसैन को जो है वो दुख देने के लिए इस्तेमाल किए गए। मौला अली अकबर जैसे पहुंचे, अमर बिन साद जो है घोड़ा दौड़ाते हुए आया, काली अकबर तू हम शबीए मुस्तफ़ा है, नबी की तस्वीर है, बड़ा खूबसूरत है, अली का पोता हुसैन का बेटा है, देख 3 दिन का प्यासा है, छोड़ अपने बाप को, हम तुझे पानी पिलाएंगे, तेरे साथ तेरे बिस्तर पर कूफा की हसीनाओं को और शाम की खूबसूरत लड़कियों को तेरे बिस्तर पे पेश करेंगे। अली अकबर तुझे आराम और राहतों की सेज मिलेगी, तुझे किसी इलाके का गवर्नर बना देंगे। लेकिन अल्लाह अकबर, आपको हैरत होगी, ये बातें भी अली अकबर को खरीदने के लिए की गई थी, लेकिन शायद वो सईद बाप का शकी बेटा नहीं जानता था कि औरों को खरीदा जा सकता है, मौलवियों के बेटे बिक सकते हैं, मौलवियों के बेटे फरोख्त हो सकते हैं, सियासतदानों की औलादें बिक सकती है, लेकिन जिसकी रगों में नबी का खून हो उनको खरीदा नहीं जा सकता, ना हुकूमत का लालच देकर, ना दौलत का लालच देकर, ना आराम का लालच देकर। उन्हें आराम फूलों की सेज पर नहीं, बल्कि उन्हें आराम तो हक को सदाकत के कांटों पर मिला करती है। अगर हक की बुनियाद पर कांटों पर चलना पड़े तो आले नबी को राहत उसी में मिला करती है, इसलिए कि उन्हें पता है कि अगर हम भी बिकने लगे तो फिर कौमों का खरीदार कौन होगा। अरे जो खरीदार होता है वो कभी नहीं बिका करता, मार्केट में चीजें बिका करती है, ताजिर नहीं बिका करते। और अहले बैत उन ताजिरों का नाम है जिन्होंने लोगों को यूं खरीदा के खरीद करके जन्नत अता कर दी। मौला अली अकबर ने कहा, तू अपने जैसा समझता है मुझे? ओ सईद बाप के शकी बेटे, एक तेरा बाप था जो मैदान के अंदर, बद्र के मैदान, नबी पे आने वाला तीर अपने सीने पे लेता, और तू आले नबी पे तीर चला रहा है। हुकूमत की लालच, शर्म कर, तू अपने बाप का बागी हो गया तो मुझे भी अपने बाप का बागी बनाना चाहता है। अगर हिम्मत है तो तू मुकाबला कर, बदबख्त, तुझे पता चलेगा कि फातेह खैबर की औलाद क्या होती है। उसके बाद अली अकबर ने तलवार चमकाई, करीब था कि उस पे हमला करते, वो पीछे हटा, और उसके बाद उसने हुक्म दिया, इससे लड़ो। चारों तरफ से घेर लिए गए अली अकबर, लेकिन उस शहजादा अली अकबर ने ऐसी तलवार चलाई कि लोगों को यूं लगा कि जैसे जुल्फिकार हैदरी खैबर के मैदान में चल रही हो। फातेह खैबर एक मर्तबा फिर अपना जंगी तेवर दिखाने के लिए आ गया हो, और आपने कहा, अना अली इब्ने हुसैन इब्ने अली, अल्लाह अकबर, ये है अली अकबर की शान। और आपने जब खूब जो है बहादुरी के जौहर दिखाए तो चारों तरफ से हुसैन के शहजादे को घेर लिया गया, और एक बदबख्त ने ऐसा नेजा शहजादे हुसैन के सीने में पेवस्त किया, यूं तो पूरा बदन गुल बदन उस शहजादे का, नर्म नाजुक बदन, अल्लाह अकबर, तीरों से छलनी हो गया था, लेकिन फिर भी वो शहजादा लड़ रहा था। अब एक नेजा आता है और सीने में पेवस्त होकर पीठ की तरफ से निकल जाता है, और वो गुल बदन चांद सा शहजादा, जिसके सीने पर लाल लाल निशान, जिसके चेहरे पर खून के लाल लाल निशान। जब मैं तारीख में अली अकबर की शहादत पढ़ता हूँ और मुझे तसव्वुर आता है कि अली का चेहरा, अली अकबर का चेहरा इतना खूबसूरत था, उस पे लाल लाल खून के निशान कैसे लगते होंगे, तो मेरा दिल कहता है ऐसे जैसे किसी ने चांद पर फूलों की पंखड़ियां बिखेर दी हो, जैसे किसी ने आईने पर गुलाब की पंखड़ियों को बिखेर दिया हो, बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने सूरज पर अल्लाह अल्लाह अकबर गुलाब को खिला दिया हो। बल्कि यूं लगता है अली अकबर के सीने के जख्म यूं लगते हैं जैसे कौसरो सलसबील के किनारे पर सुर्ख जोड़े पहनाकर हूरों को बिठा दिया गया हो। सलसबील के किनारों पर हूरों को सुर्ख जोड़ा पहना के बिठाएं तो कैसे लगेगा। ऐसे सीने अली अकबर पर लाल लाल खून के धब्बे लगते थे। बीबियां झांक झांक कर खैमे से देख रही थी। एक मंजर हुसैन ने भी देखा, आंखों पे पट्टी बांध कर नहीं बल्कि
आंखों से देखा कि बेटा घोड़े से जमीन पर आया और आवाज दी, या अबा अदरिकनी, या अबा अदरिकनी, मेरे अब्बा मेरी मदद कीजिए। मौला हुसैन फौरन दौड़े हैं और एक शिरमर की बदतरीन मलऊन आवाज आई है, हुसैन अपने चांद से बेटे को की लाश को उठाकर ले जा। मौला हुसैन जैसे ही दौड़ कर आते हैं तो क्या देखते हैं, अली अकबर जमीन पे पैर रगड़ते हैं, अली अकबर जमीन पे पैर रगड़ते हैं और अली अकबर अपनी जवानी की ताकत को समेटते हैं। मौला हुसैन अपने जवान बेटे के सरहाने खड़े हैं, अपने जवान बेटे के सरहाने खड़े हैं। दिल की जायज मुरादे ले लें, मौला अली अकबर की शहादत सुन लें। अल्लाह कबूलियत का वक्त है, हमारी बुरी तकदीरों को भली कर दे। अल्लाह अकबर। हुसैन जवान बेटे के सरहाने खड़े हैं। उसके बाद आप बैठ जाते हैं। करबला की तपती हुई रेत है, दोपहर का वक्त आ चुका है, गोया कि आसमान शोले उगल रहा है, जमीन आग उगल रही है, आसमान शोले बरसा रहा है, तपती हुई रेत है। ऐसा लगता है कि पूरे इलाके की बल्कि पूरी दुनिया की गर्मी आज सूरज करबला ही के अंदर उगल देना चाहता है। वो 3 दिन का प्यासा शहजादा जब अपने बाप की गोद में अपने सर को महसूस करता है, नीचे रेत थी और सर बाबा की गोद में था। अली अकबर ने बाप के ठंडे ठंडे हाथ जब अपने चेहरे पे महसूस किए तो जवान बेटे ने अपने बाप की गोद में आंख खोल दी। जैसे ही आंख खुली, जवान बेटे की बाप को देखा और देखने के बाद अर्ज की, बाबा बड़ी तकलीफ है, बाबा बड़ी तकलीफ है। कोई बाप तो देखे बेटा बाइक से गिरता है तो बाप के दिल पे क्या गुजरती है। आले मोहम्मद, सर कटाना जान देना, कोई तुझसे सीख जाए, जाने आलम हो फिदा, ए खानदाने अहले बैत, तुमने वो तारीख रकम की है कि अब वो तारीख कोई रकम नहीं कर सकता। सारी रंगीनियां तारीख की खून हुसैन के सामने मांद पड़ गई है। तड़प कर कहते हैं, बाबा मेरे सीने से ये नेजा निकाले। आपका बेटा अली अकबर अभी फिर दुश्मनों से जाकर लड़ने की तैयारी कर सकता है। इतना बाप ने सुना, तपती हुई रेत पर जवान बेटे के सर को रख दिया। अली अकबर की जुल्फें तपती हुई रेत पर गोया के बिखर गई और बाप 56 साला पूरी ताकत को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करने के बाद वो 56 साला बाप जैसे ही अपने बेटे के सीने से नेजा खींचता है, अल्लामा इब्ने असाकिर लिखते हैं कि जैसे हुसैन ने बेटे के सीने से नेजा खींचा तो हुसैन ने क्या मंजर देखा कि अल्लाह अकबर, नेजे की नोक पर अली अकबर के दिल का टुकड़ा निकल आता है। अली अकबर के दिल का टुकड़ा, अल्लाह अकबर। एक्सीडेंट देखने वाले कई कई दिन तक खाना नहीं खाते। अली अकबर जवान बेटे के दिल का टुकड़ा हुसैन ने नेज़े पे देखा और देखने के बाद हुसैन पर इतना गम आया। इब्ने असाकिर लिखते हैं 56 साल की उम्र तक हुसैन की दाढ़ी का एक बाल भी सफेद नहीं हुआ था। मौर्रिखीन की मुख्तलिफ राय है, यहाँ इब्ने असाकिर का हवाला पढ़ रहा हूँ। हम कैसे इस कुर्बानी को भुला सकते हैं जिसने हमारे दीन को जिंदा कर दिया। मौला अली अकबर के दिल का टुकड़ा जब हुसैन ने नेज़े की अन्नी पे देखा, हुसैन के सारे बाल सफेद हो गए। बेटे ने पैर रगड़ना बंद कर दिया क्योंकि दिल ही सीने से निकल आया। लोग सर देकर शहीद होते हैं, अली अकबर ने तो दिल भी दे दिया। अली अकबर ने तो दिल भी कुर्बान कर दिया। हाय अकबर, तेरी कुर्बानी को सलाम, तेरे बाबे के सब्र को सलाम। हुसैन अपने 18 साल जवान बेटे का लाशा उठाकर जैसे खेमे की तरफ बढ़ते हैं, ज़ैनब दूर से देखती है हुसैन आ रहे हैं। शहरबानों से कहते, शहरबानू, बेटे की शहादत ने, बेटे के गम ने मेरे भैया हुसैन को बूढ़ा कर दिया।
آج حسین کربلا میں بوڑھا ہو گیا. علی اکبر کا لاشا لا کر کے ایک غم ہو ایک تکلیف ہو تو بیان کی جائے. ادھر لاشا علی اکبر کا رکھا, ادھر زینب سامنے کھڑی ہے.